خوف، دہشت اور ڈرامائی صورتحال کے گرد گھومتی پراسرار کہانی بے گھر۔ میں نے ڈیش بورڈ پر نگاہ دوڑائی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں اس وقت تک گاڑی چلاتے ہوئے کیری، نیو میکسیکو کی ریاست میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے ہائی وے پر ہی موجود ایک ٹرک سٹاپ پر گاڑی روکی، تبھی وہ مجھے ایک بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ جولائی کی ایک گرم سپہر تھی اور میں پچھلے 9 گھنٹے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں اس دوران میں 800 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن ارادہ تھا کہ جلدی ڈنر کرنے کے بعد کوئی 200-300 کلومیٹر مزید سفر کروں گا اور پھر رات بھر کے لیے کسی موٹیل میں آرام کروں گا۔ اتنا تردد کرنے کی ایک وجہ تو میری اپنی برن سائڈ کیمیکلز کی جاب تھی، لیکن دوسری اہم وجہ کیرن تھی۔ وہ لاس اینجلس میں شدت سے میری آمد کی منتظر تھی۔ ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے نہیں ملے تھے اور میں اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کیرن کے لیے بھی میرے بارے میں کچھ ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ فون پر البتہ وہ بڑے محتاط انداز میں بات کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بس کچھ لوگ جیسے ہر بات کا اظہار کرنے میں شرمیلے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح محبت کے برملا اظہار کرنے میں شرما جاتی تھی۔ مجھے اس کا محبت اور شرم کے مارے سرخ ہو جانے والا چہرہ بہت پسند تھا۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور اس وقت بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی اوڈی کار کی ٹینکی فیول سے بھری اور وہیں پر واقع کیفے نما ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں ٹھہرا دی۔ وہاں سے پیدل چلتا ہوا جب میں داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا، تبھی میری نظر اس شخص پر پڑی جو بینچ پر دوہرا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی باسکٹ بال کے کھلاڑی کی طرح لمبا تھا۔ سچ کہوں تو میں نے باسکٹ بال ایرینا سے باہر پہلی بار اتنا لمبا کوئی آدمی دیکھا تھا۔ 7 فٹ کے لگ بھگ قد، دبلا پتن لیکن کمزور نہیں، معمول سے کہیں زیادہ چوڑے ہاتھ اور انگلیاں کٹی پھٹی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ مزدوری کرتا رہا ہو۔ اس نے پسینے میں بھیگی شرٹ پہن رکھی تھی، جینز کی خستہ حال پتلون کے ساتھ بوٹ بھی پرانے تھے۔ وہ آگے کی جانب اس طرح جھک کر بیٹھا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان جھول رہے تھے۔ اس کی تھوڑی سینے پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ نگاہیں زمین پر اس کے قدموں میں دھرے ایک ڈفل بیگ پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بڑے سے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر بے اختیار ہی میں افسردہ ہونے لگا۔ وہ گرمی کی شدت سے بے چین دکھائی دیتا تھا، تھکن سے اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی نومر لڑکا ہو جسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ملا ہو اور نہ ہی کوئی اس کو مزید اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو۔ حالانکہ وہ کوئی نوجوان لڑکا نہیں تھا، لگ بھگ 24 سال کا ہی ہوگا، یہی کوئی مجھ سے چند سال چھوٹا۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس سے گزر گیا، پھر یکلختی رکا اور مڑ کر واپس آ گیا۔ اس میں کچھ عجیب بات تھی، شاید چہرے پر چھائی افسردگی۔ کیرن کہتی تھی کہ میں کسی بے گھر کو دیکھ لوں تو خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، کوئی راستے سے بھٹک گیا ہو، کھو گیا ہو یا گھر سے نکال دیا گیا ہو۔ میں ان سب کی مدد پر ہمیشہ ہی آمادہ رہتا تھا۔ یہ مدد صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ بقول کیرن، میں کسی کتے بلی کو بھی بے گھر دیکھتا تو گھر لے آتا تھا، اور اس کی یہ بات صرف حیوانوں تک محدود نہ رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کا برا نہیں مناتا، کیونکہ میں واقعی لوگوں کی مدد کرنے کا یقین رکھتا ہوں۔ انسان اگر اپنے جیسے انسانوں کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کی امداد کے لیے؟ مداخلت کے معذرت خواہ ہوں، میں نے بات کا آغاز کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور بھوری سی تھیں، جن میں نامعلوم سی اداسی کی لہریں ہلکورے لے رہی تھی۔ ان چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ایک بلی یاد آ گئی جسے میں ایک بار گھر لے آیا تھا اور کیرن نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ گرمی ہے، اس نے مختصر ترین الفاظ میں اپنی پریشانی بیان کر دی۔ اس کی آواز نرم تھی، لیکن اس میں تھکن کا عنصر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ واقعی بہت زیادہ گرمی ہے۔ میں نے بات کو بڑھایا اور پھر سوال کیا، تم اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اتنا بڑا لکھا ہے کہ اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ کیفے کے باہر اس کی جو خوبیاں لکھی تھی ان میں ایئر کنڈیشن ہال کا تذکرہ جلی حروف میں کیا گیا تھا۔ نہیں جا سکتا، میرے پاس وہاں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے کہا۔ کیا تم یہیں کہیں آس پاس سے ہو؟ نہیں، بس گزر رہا تھا اس علاقے سے۔ اور تمہاری گاڑی کدھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس پیٹرول کے پیسے تو ہیں نا؟ میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کسی سے لفٹ لے کر آئے ہو؟ پیدل چل کر۔ پیدل چل کر؟ میں نے حیرت کی شدت سے چلاتے ہوئے بولا۔ کہاں سے؟ قصبے سے ہی پیدل آیا ہوں، اس نے بتایا۔ یعنی تم ٹوکم کیری قصبے سے یہاں تک پیدل چل کر آئے ہو؟ میری حیرانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں سے یہاں آنے تک تو کوئی سایہ علاقہ بھی نہیں ہے۔ تم اس وقت سے شدید گرمی میں پیدل چل رہے ہو؟ کسی نے راستے میں تمہیں لفٹ نہیں دی؟ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا۔ آج کل کوئی لفٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ تم تو تھکن سے بے حال ہو چکے ہوگے، میں نے اندازہ لگایا۔ تم نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟
कल शाम में किस वक्त खाया था, इसने जवाब दिया। वो न सिर्फ थका हुआ था बल्कि कई पहर से भूखा भी था। मुझे बड़ी शिद्दत से इसकी हालत पर तरस आने लगा। यहाँ पर बहुत से लोग रुकते हैं। मैंने आस्तिकी से कहा, तुम किसी से भी कह देते तो वो तुम्हारी मदद कर देता, मेरा मतलब है मैं भिखारी नहीं हूँ। वो मेरी बात काटते हुए बोला। उसके लहजे की कतीत सुनकर मैं एक बार हिचकिचा कर रह गया। एक लम्हे के लिए तो जी में आया कि उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा नहीं कि किसी की बदहाली देखकर दिल न पसीजे। भीख के बजाय कोई तुम्हारा हमराही, कोई रास्ते में मिलने वाला दोस्त मुसाफिर तुम्हारी मदद करना चाहे तो। मैंने हर मुमकिन मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए सवाल किया। हाँ, इसके चेहरे पर हवनको वाले तासुरात उभरा जैसे मेरी बात इसकी समझ में न आई हो। चलो उठो यहाँ से। मैंने अब की बार इसे वाज़े अल्फाज में दावत दी। मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा और मज़ेदार सैंडविचेस भी खिलाऊंगा। वो हैरत से पलके चिपका रहा था जैसे मैंने अकल से बैद कोई बात की हो। तुम ये सब कुछ मेरे लिए करोगे? इसके लहजे में इस्तेजाब नुमायाँ था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक दोस्त मुसाफिर हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, तुम भी इस वक्त भूखे हो और मेरे पेट में भी चूहे दौड़ लगा रहे हैं। मेरे अंदाज पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमा चीज़ उभरी जो फ़ौरन ही मादूम हो गई। आज तक किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लहजे में तशक्कुर से ज़्यादा अब भी हैरत थी। ज़िंदगी में हर काम कभी न कभी पहली बार ज़रूर होता है, मैंने कहा। तो क्या ख्याल है तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा हो जाए? ठीक है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। वो बेंच से उठकर खड़ा हुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तह किया वजूद सीधा हो गया हो। उफ खुदाया, वो बहुत तवील कामत था, मुझसे तकरीबन 2 गुना लंबा। मैंने इसके कद के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल ही गलत साबित हुआ था। मेरे सामने वो किसी खंबे की मानिंद इस्तादा हो गया। ऐसा लगता था कि वो जैसे कोई देवजाद हो, बस मेहरबान और नरमदिल किस्म का देवजाद, वरना वो बहुत खौफनाक लगता। हम लोग कैफे टेरे में दाखिल हो गए। डिनर का वक्त तो हो चुका था, इसलिए हाल तकरीबन भर चुका था। दूर कोने में एक टेबल खाली थी, चुनांचे हम इसकी जानिब बढ़ गए। लोग गर्दनें मोड़ मोड़ कर हमारी जानिब देख रहे थे। गालिबन एक देवजाद और मुझे एक साथ चलते देखना भी अजीब तजर्बा था। हमारे बैठने के बाद भी कुछ लोग अजीब निगाहों से हमारी तरफ देखे जा रहे थे। वो उनकी जानिब से बिल्कुल ही बेपरवाह नजर आ रहा था। एक वेट्रेस शीशे के गिलासों में हमारे लिए ठंडा पानी लेकर आई। मेनू कार्ड भी इसके पास थे, जिसने हमारे हाथों में थमा दिए। इस देवजाद ने एक ही सांस में खटाखट करते हुए पूरा गिलास खाली कर दिया। वेट्रेस हैरानी से देखने लगी जैसे वो कोई अनोखी मखलूक हो और सर्कस से भागकर यहाँ खाना खाने आ गया हो। मैंने मेन्यू खोलने की जहमत न की और आलू के चिप्स, एक बड़े लेमन जूस के गिलास के साथ पनीर के गोश्त वाले बर्गर का ऑर्डर कर दिया। देवजाद ने भी मेरी तकलीद की। मेरा नाम जैक है। वेट्रेस के जाने के बाद मैंने इसे मुखातिब किया। जैक टूबिन, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रेकबोन। ब्रेकबोन? मैं हैरत से आंखें पटपटा कर रह गया। तुम्हारा मतलब है हड्डी तोड़? हाँ वही वही, मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं, ब्रेकबोन बोला। बड़ा ही अनोखा नाम है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। ये मेरा असल नाम नहीं है, बस जैसे किसी का निकनेम होता है ये वैसा ही है। इसने वजाहत देना शुरू की। मैं बहुत बड़ा हूँ ना, और मेरे हाथ देखो बहुत मजबूत है, मैं इनसे कुछ भी तोड़ सकता हूँ। ठीक ठीक, मुझे यकीन आ गया। मैंने इसके किसी बड़े थाल जैसे फैले हुए हाथों को देखते हुए कहा, बस मुझ पर एक मेहरबानी करना, कभी मुसाफा करने की कोशिश ना करना। ओके। इसने एक लफ्ज़ी जवाब देकर मेरी दरख्वास्त कबूल की और फिर मेरे पानी के गिलास की जानिब इशारा करते हुए बोला, अगर तुमने ये ना पीना हो तो मैं ले लूँ, क्यों नहीं? मैंने खुशदिली से कहा। उसने शुक्रिया अदा करने का तकल्लुफ़ किए बगैर मेरा गिलास उठाया और एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। तो तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेकबोन बोला। मैं इसका नाम लेते हुए कदर हिचकिचाया, लेकिन फिर भी सवाल कर दिया। कहीं ख़ास नहीं, मैं घूमता फिरता रहता हूँ बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर। इसने मुँह में जवाब दिया। क्या तुम अपने लिए कोई काम तलाश करते फिर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ ढूंढ रहा हूँ, इसने बताया। तुम किस तरह का काम तलाश कर रहे हो? मैंने बात आगे बढ़ाई। किसी भी तरह का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंधों को उचकाते हुए बोला। बुरा ना मनाओ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने नया सवाल दाग दिया। मेरे पास घर नहीं है, ये बताते हुए इसके लहजे में अजीब तरह की यासियत दर आई थी। मैं बेघर हूँ। ओहो, मेरा मतलब है कि तुम हो किस इलाके से? मैंने वजाहत की। मुल्क के किस कोने से ताल्लुक़ रखते हो? मिड वेस्ट से हूँ। वो इतनी मुख्तसर सी बात कहकर खामोश हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस मौजू पर किसी किस्म की गुफ्तगू पसंद नहीं करेगा। चुनांचे मैंने गुफ्तगू का मौजू तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, मैंने इसे बताया। मेरा पेंसिल्वानिया से वहाँ तबादला हो गया है। मुझे वहाँ पिछली से कई गुना बेहतर नौकरी मिल गई है। मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी अच्छी जॉब करने जा रहा हूँ। वैसे मैं एक रिसर्च केमिस्ट हूँ। मैंने अपनी कंपनी और जॉब के बारे में तफसीलन बताते हुए कहा।
हाँ, उसे एक हंगारा भरा। मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ मेरी मुंतज़िर है, मैं बोला। वो 2 हफ्ते कबल ही वहाँ पहुँच गई थी ताकि हमारे अपार्टमेंट की तज़य्युन और आराइश कर सके। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। जैसे ही मैं अपनी नई जॉब पर सेटल हो जाऊँगा तभी हम शादी कर लेंगे, शायद इसी साल के आखिर तक। मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। वो मेरी बात कतरा करते हुए बोला, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। मैं बोला, खुदा ने हम इंसानों को जोड़ों में पैदा किया है, हर लड़के की गर्लफ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, अगर वो लड़कों। मैंने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन वो समझ गया था। मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सर्द लहजे में बोला, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम ऐसा कोई शौक़ रखते हो। मैंने फ़ौरन इस्तीफ़ा पेश की, हालांकि वो मेरी बात पर नाराज़ या गुस्से में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे परेशान मत हो सकता है कि तुम्हें वो बहुत जल्द मिल जाए। मुश्किल है। इसके लहजे में क़तियत थी। वो मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, किसी जिन की जैसा। तुम बहुत बड़े हो तो क्या हुआ? बहुत सी लड़कियाँ भी बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं और इन्हें तुम्हारे जैसे मर्दों का साथ ही दरकार होता है। मैंने कहा। मेरा साथ किसी को नहीं चाहिए होता, उसने कहा। मैंने इस मौजू पर मज़ीद बात न करने का फ़ैसला किया। इसके साथ ज़्यादा देर तक बातचीत करना एक मुश्किल काम था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिमाग थोड़ा सुस्त रवि से काम करता था और वो सीधा भी नहीं सोचता था। अगरचे मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो। हमारे पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ रह नहीं गया था, इसलिए खामोशी पर इक्तफ़ा किया गया। खाना आया तो मैंने सुकून से अपना बर्गर खाया, लेकिन वो चंद लुकमों में ही सब ठोंस गया। मेरी प्लेट अभी आधी से ज़्यादा भरी थी और वो अपना सब कुछ ख़त्म कर चुका था। बेचारा। बेसाख्ता ही मेरे ज़हन में सोच उभरी, न जाने कब से इसे मुनासिब खुराक नहीं मिली थी। अगर चिकनाई में लुथड़े हुए बर्गर और फ्राइज़ को ढंग का खाना समझा जा सकता है तो बड़े अरसे बाद ही इसे ढंग का खाना मिला था। मुझे खुशी थी कि मैंने इस भूखे को खाना खिलाने का फ़ैसला किया था। मैंने खाने का बिल चुकाया और हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। गर्मी का जोर टूट चुका था और मौसम अब एसी के बगैर भी काबिल बर्दाश्त महसूस हो रहा था। वो माथे पर तीरें चढ़ाए इंटरस्टेट 40 की जानिब जाने वाली गाड़ियों को देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत गहरी सोच में हो। अब तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। पता नहीं, वो अपने शाने उचकाते हुए बोला। आजकल खेतों पर मजदूरों की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे मुस्तकिल बुनियादों पर कोई काम नहीं मिलता। शायद शहर में ही कोई काम मिल जाए। करीबी शहर भी काफ़ी फासले पर है। मैंने तशवीश का इजहार किया। मसला ही कोई नहीं, वो बोला। मुझे लंबे फासले पैदल तय करने की आदत है और रास्ते में कहीं कभी सो सकता हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर अफसोस हो रहा था। आज के जदीद दौर में वो शख्स कदीम ज़माना के इंसानों वाली आदत अपनाए हुए था। इसकी वाहिद वजह फ़क्त माली अदम इस्तेहकाम था। सुनो ब्रेकबोन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सांता रोज तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने अपने रास्ते में आने वाले करीबी शहर का नाम लेते हुए कहा। वहाँ मैं किसी अच्छे मोटल में तुम्हारा रात गुजारने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। आजकल दूसरे शहर मुंतकिल होने की वजह से ज़रा रकम की कमी का शिकार हूँ, लेकिन एक और वक्त का अच्छा खाना खाने के पैसे भी दे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पेशकश काबिल कबूल हो तो ऐसा ही हो सकता है। मैंने आखिरी जुमला इसलिए कहा ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। वो गहरी और पुरसोच निगाहों से मुझे तकता रहा। ये सब तुम मेरे लिए करोगे? वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद हैरानी से बोला। लेकिन क्यों? इसे शायद ज़िंदगी में कभी अच्छे रवैये का सामना नहीं हुआ था, इसलिए इसका इस्तेजाब पर मबनी बर हकीकत था। बस समझ लो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मुझे लोगों के काम आना पसंद है। मेरी फितरत ही ऐसी है कि किसी की मदद करके खुशी मिलती है। अब बताओ कि लिफ्ट कबूल है या नहीं? मैंने पूछा। ठीक है, चलते हैं, इसने कहा। हम दोनों मेरी ऑडी कार में सवार हो गए। वो इतना ज़्यादा लंबा था कि नशीस पर तकरीबन नीमदराज होकर बैठना पड़ा। इसका डिफल बैग नीचे रखा था, लेकिन फिर भी इसके घुटने डैशबोर्ड को छू रहे थे और इसका सर कार की छत को। सफ़र पर रवाना होने के बाद वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। वो पहले ही बातचीत कम करता था और मेरे पास भी इससे गुफ्तगू के लिए मौज़ूआत ख़त्म हो गए थे, इसलिए मुझे इस बात की ख़ास परवाह न थी। सारा दिन ड्राइविंग करने के बाद भी मैं इस मूड में नहीं था कि खामखा गुफ्तगू करता रहूं। वैसे भी ड्राइविंग के दौरान बातचीत की वजह से मुझे उलझन ही होती थी। ये सहराई इलाका था। दूर दूर तक किसी ज़ी-नफ्स का निशान नज़र नहीं आता था। दूर कहीं टीले और बेआबो गया मैदान नज़र आ जाते थे। कहीं कहीं अस्तबल और खेत भी मौजूद थे। घोड़े तो फिर भी ऐसे माहौल में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गाय भैंसें कैसे खुश्क चारे पर गुसर बसर करती थी, ये मेरी समझ से बाहर था। बेशतर इलाका बंजर था और कहीं कहीं कैक्टस के पौधे या दीगर खारदार झाड़ियाँ नज़र आ जाती थीं। ट्रैफिक भी खाली था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती थी। हम सुकून से अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। तब कोई 20-22 किलोमीटर के बाद एक इंटरचेंज आया। हम इसके करीब पहुंचे तो मुझे एक लड़का नज़र आया जो कंधे पर बैग लटकाए घास पर ठहरा था। वो किसी गाड़ी से लिफ्ट लेने का मुंतज़िर दिखाई देता था। एक और आवारा गर्द जो मुफ्त सफ़र करने का ख्वाहां था।